Hi guys, moving on to the next set of questions. Now we have to find the value of f345 comma 10. When you call this function from mean, so we have to find out the value of 345 comma 10. So this n is 345 and this r is your 10, right? Now if 345 is greater than 10, right? 345 greater than 10, so your condition is true, right? 345 greater than 10, your condition is true. So when condition is true, what it is returning? It is returning n modulus r. 345 modulus 10. 10 34s are 340, so remainder is 5 plus your function n by r. 345 divided by 10 is your 34 comma r value is 10, right? So r 5 plus f 34 comma 10. Now when you call this function 34 comma 10, the value of n is 34 and r is 10. So this condition is true. So what it returns? It returns what? N modulus r. 34 modulus 10 is 4 plus function f, and 34 divided by 10 is 3 comma r value is 10, right? Now when you call this function f3 comma 10, when you call 3, n is 3 and this is your 10, 3 greater than 0. Condition 2, now 3 modulus 10. 3 modulus 10 is 3 and 3 divided by r is 0. So function 0 comma 10, right? When you call 0 comma 10, this condition becomes false, so returns 0. So this returns 0. 3 plus 0 is 3, so returns 3. 4 plus 3 is 7, so returns 7. 7 plus 5 is 12. So answer that this is 12. Pretty simple. गेट का ही क्वेश्चन था पर बहुत ही सिंपल था. ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस कोड इज 12. Right. Now moving on to the next question. We are calling this function f a is 2048, sum is 0. We are calling f a comma sum. So a is, so it means the n value is 2048. This is your n and your sum value is 0. This is sum, the value is 0. So now we are calling this function. Now k is equal to 0, j is equal to 0. If n is equal to 0, value of n is 2048. So this is false. Now when you come here, k is equal to n modulus 10. So what is the modulus 10? When you do n modulus 10, what is this? So it is, remainder is 8, right? So value of k is 8 and value of j is n by 10. So n by 10 means the value of j is 204, right? So now sum is equal to sum plus k. Sum is equal to sum plus k. So what is sum is equal to sum plus k? What is the value of sum? Sum is your 0 and k is 8. So sum becomes your 8. So value of sum become 8, right? Before this. So now sum is 8 and j is 204. So what you are doing, you are calling this function j 204 comma what is sum? Sum is 8, right? And you are printing the value of k. So k is 8. पर अभी नहीं प्रिंट होगा, पहले ये फंक्शन हम पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद 8 वैल्यू प्रिंट होगी, राइट? तो अभी ये क्या है, अभी हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे 204 comma 8. नाउ योर f 204 comma 8, ठीक है, और 8 साइड में प्रिंट हो गए. अब n की वैल्यू 204 हो गई, सम की वैल्यू 8 है. मैं दोबारा नीचे आऊंगा, इसको सॉल्व करूंगा. k is equal to n modulus 10. 204 modulus 10 is your 4 and j is equal to n by 10. 204 divided by 10 is what? 20. So value of j is 20. Now sum is equal to sum plus k. What is the value of sum? What is the value of sum? Sum is equal to sum plus k. अभी यहाँ पे सम की वैल्यू कुछ भी नहीं चेंज हुई है. सम इज इक्वल टू k. हाँ, k की वैल्यू 4 है. सम इज इक्वल टू 0 प्लस 4. सम की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है. और हम इस फंक्शन को फिर दोबारा कॉल करेंगे. हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे f j कॉमा सम. j की वैल्यू कितनी है? 20. सम की वैल्यू कितनी है? 4, राइट? और साथ में ये k प्रिंट हो रहा है. इसके बाद ये k प्रिंट हो रहा है, k की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है. तो पहले 4 प्रिंट होगा, उसके बाद में 8 प्रिंट होगा. अभी फंक्शन कितना है लेकिन 20 comma 4. नाउ वी विल कॉल दिस फंक्शन 20 comma 4, राइट? 20 comma 4 और मेरी वैल्यूज 8 हो चुकी है और 4 हो चुकी है, ठीक है. तो मतलब बेसिकली 8 यहाँ पे है और उसके बाद मेरा
4 है। अब मैं 20 4 को कॉल करूंगा, n की वैल्यू 20 है मेरी और मेरी सम की वैल्यू कितनी है 4 है। ओके, सम की वैल्यू कितनी है 4 है। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो 20 इज इक्वल टू 0 कंडीशन हो गई फॉल्स। यहाँ पे है k इक्वल्स टू n मॉडुलस 10 तो 20 मॉडुलस 10 कितना हो गया 0 और j इक्वल्स टू 20 बाय 10 कितना हो गया 2। सम इज इक्वल टू हो गया सम प्लस k, सम की वैल्यू कितनी है 4, 4 प्लस 0 कितना आ गया 4। ठीक है, और फिर हमने इस फंक्शन को कॉल किया j सम 2 4 और k को प्रिंट किया, k की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई 0, अगली वैल्यू मेरी कितनी है 0। अब मैं फंक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, फंक्शन 2 4। ठीक है, तो मैंने इस फंक्शन 2 4 को सॉल्व किया। जब मैंने इस 2 4 को सॉल्व किया, n की वैल्यू कितनी है 2 है, फॉल्स नीचे आया k इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, 2 मॉडुलस 10 k इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, 2 मॉडुलस 10 कितना होता है 2 होता है। j इज इक्वल टू 2 बाय 10 कितना होगा 0 होगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस k, सम की वैल्यू कितनी है 2 4 लिख लिया था, सम इज इक्वल टू सम प्लस k 6, राइट। सम की वैल्यू कितनी होगी 6। मैंने फंक्शन कॉल किया फिर 0 6 और k की वैल्यू प्रिंट करी, k प्रिंट हो गया 2, तो अगली वैल्यू क्या है मेरी 2। ठीक, और उसके बाद जैसे ही 0 आया रिटर्न, तो मतलब फंक्शन के बाहर, तो पॉप कर लो। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले प्रिंट हुआ 2 प्रिंट हुआ, फिर क्या प्रिंट हुआ 0 प्रिंट हुआ, फिर क्या प्रिंट हुआ 4 प्रिंट हुआ, फिर क्या प्रिंट हुआ 8 प्रिंट हुआ। ठीक है, बाद में कंट्रोल जब दोबारा मेन में आता मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सम। अब देखो यार, ये सम और ये सम दोनों डिफरेंट है। ये सम इस फंक्शन के लिए लोकल है, ये सम इस फंक्शन के लिए लोकल है, पर मैं सम को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो इस सम की वैल्यू कितनी है 0, तो वो प्रिंट हो गया 0। तो आंसर सबसे पहले प्रिंट हुआ 2, फिर प्रिंट हुआ 0, फिर प्रिंट हुआ 4, फिर प्रिंट हुआ 8 और फिर प्रिंट हुआ 0। That's the answer, right? Okay guys, take care, bye.